Hello, friends. Let's begin with the Partnership Accounting CBSE 12th Commerce. We will have a series of lectures of all Partnership Volume 1. We'll begin with the first lecture today. We'll start with the introduction of partnership, P&L appropriation, partners capital. बच्चों हम लोग क्या करेंगे? We will have small lectures of each concept. एक लेक्चर में एक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे. वेरी इजी टू रिवाइज, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो आज लेट्स बिगिन विद दी बेसिक्स. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप बिजनेस करते हैं तो व्हाट आर डिफरेंट वेज यू डू योर बिजनेस. नंबर वन, सोल प्रोप्राइटरशिप, which is single owner business. The second is partnership where we have two or more owners. They work together, do business together to earn profit together. और अगर आप और हाई स्केलिंग में जाना चाहते हैं, जैसे आप स्केलिंग में जाएंगे वैसे आपको बिजनेस को अपग्रेड करना पड़ेगा. सोल प्रोप्राइटर में नॉर्मली स्मॉल स्केल बिजनेस चलता है, और ऐसे इसको आप स्केलिंग करेंगे, यू गो फॉर पार्टनरशिप. और स्केलिंग करेंगे देन यू गो फॉर अ जॉइंट स्टॉक कंपनी, कॉर्पोरेट. ठीक है. Now the third level of business. Now our target in this topic will be to discuss the partnership business. Now partnership business means two or more persons, they come together, they join hands together, they work together, do business together, earn profits, share losses. Now why do we go for partnership? आखिर ऐसा पार्टनरशिप बिजनेस में क्या बेनिफिट होता है? सो वी विल डिस्कस द डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस. नंबर वन, व्हेन यू गो फॉर पार्टनरशिप बिजनेस वी हैव लार्ज कैपिटल. आप मल्टीपल ओनर्स आएंगे, मल्टीपल ओनर्स विल ब्रिंग कैपिटल. एक आदमी अगर बिजनेस करेगा तो उसका एक का कैपिटल होगा. इफ देयर आर 5 पार्टनर्स, 5 ओनर्स विल ब्रिंग इन कैपिटल. सो लार्ज कैपिटल मीन्स स्केलिंग. आप बिजनेस को अपने बड़े स्केल पे कर सकते हैं. व्हाट इज द सेकंड बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप? दैट इज डिवीजन ऑफ वर्क एंड रिजल्टिंग इनटू स्पेशलाइजेशन. मीन्स व्हाट? वी हैव 3 partners. One is expert in production, other one is expert in marketing, and third one is expert in maybe finance. So all 3 come together, they divide the work, do their own job together. As a whole it's going to be a great success. क्योंकि अगर आप सोल प्रोप्राइटर में जाएंगे, one person cannot be expert in everything. Here we have expertise of different people coming together, division of work happening. एक बहुत अच्छा और बेनिफिट है बच्चों, वो है डिवीजन. रादर आई वुड से इंस्टेड ऑफ डिवीजन, शेयरिंग ऑफ रिस्क. कल को अगर लॉस होता है तो ऑल विल शेयर द लॉस. द बर्डन ऑफ लॉस would be shared. That sharing of risk is one of the great benefit of partnership. Correct? But do we have any drawbacks of partnership? What do you feel? What could be the drawbacks of partnership? Demerits of partnership. The demerit number 1 is disputes. More people working together, they have difference of opinion, they think different way, hence we may have disputes. One of the biggest drawback of partnership is unlimited liability. This is the problem of the partnership, and that liability is joint and several. This is the problem because of which people, instead of going for partnership, they go for corporate and company. क्या होता है? से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास से 3 पार्टनर्स हैं, A, B और C. और अगर फर्म
is a loss making firm insolvent हो गया, firm is unable to work, firm is unable to pay its liabilities, then who will pay liabilities of firm? Answer is partners will pay from their home. घर से पैसा लाके बिजनेस की लाइबिलिटीज पे करनी पड़ेंगी. वी कॉल इट एज अनलिमिटेड लाइबिलिटी. टेंशन वाला काम है. अब इसमें ना एक और बात ध्यान में रखना बच्चों, अनलिमिटेड लाइबिलिटी में एक और बड़ा प्रॉब्लम है यहां पे, वो है जॉइंट एंड सेवरल. फॉर एग्जाम्पल फर्म तो डूब गया, फर्म तो बर्बाद हो गया. अब कुछ फर्म की लाइबिलिटी से, फॉर एग्जाम्पल फर्म के असेट्स हैं 20 लाख के, लेकिन फर्म की लाइबिलिटीज हैं 26 लाख के, तो 6 लाख की लाइबिलिटीज फर्म की जो पार्टनर्स को पे करनी है. अच्छा समझो ये इक्वल पार्टनर्स हैं, तो ये तीनों पार्टनर्स को घर से कितना लाना पड़ेगा? 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख. लेकिन अनफॉर्चुनेटली सी इज ऑल्सो इंस्टॉलमेंट. अगर सी भी इंस्टॉलमेंट है तो क्या होगा? नाउ हु विल पे अमाउंट ऑफ सी? आर ए एंड बी लायबल टू पे द अमाउंट दैट सी इज अनेबल टू पे? आंसर इज यस. जो सी पैसा नहीं ला पाएगा वो पैसा ए और बी को लाना पड़ेगा, सी का. दिस इज कॉल्ड अनलिमिटेड जॉइंट एंड सेवरल, and that is the biggest drawback of partnership. Risk level is too high. Do we have any solution? Answer: solution has already come. इंडिया में अब हमारे पास एक बहुत जबरदस्त नया कॉन्सेप्ट आया है. द सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, जिसको हम बोलते हैं LLP. Now you can have a partnership firm with limited liability. Yes. ठीक है. अच्छा, पार्टनरशिप फर्म का बच्चों सबसे बड़ा तीसरा ड्रॉबैक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है वो हाई टैक्स रेट्स. Partnership is taxed at very high tax rate. Now that is the drawback, because of the reason people don't go for partnership. Instead they go for a company. Benefit number 1, the liability is limited. Benefit number 2, tax rates are slightly lower than partnership. ठीक है. Anyways, still if you want to scale your business, the partnership is one of the best option available. Higher capital, division of work. चलो दोस्तों, ये पार्टनरशिप फर्म एक उठा लेते हैं. हमारा एक पार्टनरशिप फर्म है, उसके 2 पार्टनर्स हैं. इन 2 पार्टनर्स को एक नाम दे देते हैं. हमारा ऊपर जो पार्टनर है उसका नाम है रामू, नीचे जो पार्टनर है उसका नाम है मामू. रामू और मामू 2 पार्टनर्स हैं इस फर्म के. अच्छा, दोनों ने फर्म को क्या दिया है? दोनों ने फर्म को क्या दिया है? कैपिटल दिया है. पार्टनर्स फर्म को क्या देते हैं? कैपिटल देते हैं. अच्छा, फर्म उसके बदले में कमिटमेंट देता है कि हम जो भी कमाएंगे हम आपको देंगे. फर्म, पार्टनरशिप फर्म पार्टनर्स को बदले में क्या देता है? आंसर इज प्रॉफिट देता है. क्या देता है? प्रॉफिट देता है. लेकिन यहां पे जो फर्म पार्टनर्स को प्रॉफिट देता है उसका डिवीजन में ना बहुत इश्यूज है. कैसे? रामू जो है ना वो वर्किंग है, वो पूरा दिन काम करता है. मामू इज नॉन वर्किंग पार्टनर, वो सुबह आता है, ऊपर से सब काम देखेगा, चाय पिएगा, निकल जाएगा. अब द प्रॉब्लम इज प्रॉफिट कैसे बांटें. अब आप देखेंगे रामू वर्किंग है लेकिन उसके पास कैपिटल लिमिटेड है, उसने फर्म को खाली 10 लाख दिया है. और मामू कैसे ना पैसे वाला है बहुत, वो बोला मैं नहीं आएगा, मैं पैसा बहुत लगाऊंगा, तो 50 लाख रुपए का उसने कैपिटल दिया. अब दिक्कत ये है कि हर एक का कंट्रीब्यूशन ऑन द टेबल इज डिफरेंट.
रामू कैपिटल कम ला रहा है बट खुद मेहनत कर रहा है, मामू खुद नहीं काम कर रहा या मे बी पार्ट टाइम कर रहा है बट कैपिटल ज्यादा लेके आ रहा है. हाउ टू डिवाइड द प्रॉफिट्स, दैट इज द मेजर इशू. अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम प्रॉफिट डिवीजन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. क्या करेंगे, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड. जो वर्किंग पार्टनर है, वर्किंग पार्टनर को क्या देगा, फर्म सैलरी देगा. ठीक है, तो रामू इज अ वर्किंग पार्टनर, तो रामू विल गेट सैलरी फ्रॉम फर्म. अच्छा, तो मामू बोलेगा भाई मैं नहीं काम कर रहा लेकिन मेरा पैसा तो फर्म में काम कर रहा है, तो मेरा जो पैसा है उसका सैलरी दो. यस, और पैसे का सैलरी होता है इंटरेस्ट. तो इंटरेस्ट तो दोनों को मिलेगा क्योंकि रामू ने भी कैपिटल लगाया है, मामू ने भी कैपिटल लगाया है, बट द डिफरेंस इज रामू ने कम, मामू ने ज्यादा, तो प्रोपोर्शनेटली इंटरेस्ट दिया जाएगा. तो सैलरी के अलावा और क्या दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखो, आप देखेंगे मामू को सैलरी नहीं मिलेगा बिकॉज ही इज नॉट वर्किंग. अपार्ट फ्रॉम दैट जो बाकी प्रॉफिट बच गया, दैट विल डिस्ट्रीब्यूट. शेयर ऑफ प्रॉफिट बोल के हम बांट देंगे दोनों में, शेयर ऑफ प्रॉफिट. दिस इज अ थर्ड पार्ट. इसका मतलब है फर्म पार्टनर को क्या क्या देगा, फर्म पार्टनर को क्या क्या देगा. नंबर 1, जो पार्टनर काम करता है उसको फर्म सैलरी देगा. जो पार्टनर पैसा लगाता है फर्म उसको क्या देगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देगा. और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ प्रॉफिट है वो भी पार्टनर्स को बांट देगा, प्रॉफिट शेयर. क्लियर टू एवरीवन. अब इसकी अकाउंटिंग कैसे होगी, इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसको कैसे प्रोजेक्ट करेंगे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, ये सब हमारे इस चैप्टर में हम इन डेप्थ में सीखने वाले हैं. तो आई होप दिस मच कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी क्लियर. अब एक और मुद्दा आ जाता है, फर्म ने पार्टनर से क्या लिया, कैपिटल लिया, लेकिन पार्टनर ने भी फर्म से कुछ लिया है. पार्टनर ने फर्म से क्या लिया है, ड्राइंग्स. टेक वन मोर स्क्रीन फॉर दिस. हाँ, पार्टनर ने फर्म से कुछ पैसा लिया है जिसको हम क्या बोलेंगे, ड्राइंग्स. जब जब पार्टनर को घर में पैसा चाहिए तो पार्टनर फर्म से पैसा लेता है. फर्म ने पार्टनर को बुलाया, बोला एक सुन भाई पार्टनर, तूने कैपिटल दिया तो इंटरेस्ट ले रहा है, तूने पैसा दिया तो इंटरेस्ट ले रहा है, मैंने भी तुझे पैसा दिया है जिसको हम ड्राइंग्स बोलते, अब तू इंटरेस्ट दे. इन दैट वे पार्टनर फर्म को क्या पे करेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज, जो पैसा देगा वो इंटरेस्ट लेगा. पार्टनर ने फर्म को कैपिटल दिया तो पार्टनर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेता है. फर्म ने पार्टनर को ड्राइंग का पैसा दिया तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लेता है. अब मोमेंटम देखो, एक इंटरेस्ट दिया जाएगा, एक इंटरेस्ट लिया जाएगा. क्लियर. अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, चलो ये चीजें 3 मेन चीजें, 4 मेन चीजें हो गई, तो हम लोग जरा एक टेबल बना लेते हैं. फर्म पार्टनर को क्या देता है, फर्म पार्टनर को देता है नंबर 1 सैलरी, नंबर 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. नंबर 3, शेयर ऑफ प्रॉफिट. प्रॉफिट का जो हिस्सा है वो भी फर्म पार्टनर को देता है. फर्म पार्टनर से क्या लेता है? एज ऑफ नाउ जितना डिस्कशन किया है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. इसके अलावा भी कुछ लेन देन होता है. यस, ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं. मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. फर्म पार्टनर को क्या देता है? सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, शेयर ऑफ प्रॉफिट. लेता है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स. ये 4 सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स और उसकी अकाउंटिंग पहले सीखेंगे. इसके बाद हम और चीजें इसमें ऐड करेंगे. और क्या चीजें होंगी? कभी कभी देयर इज समटाइम्स अ लोन. व्हाट इज लोन? जरा बात कर लेते हैं. एक यहां पे लेट्स टॉक अबाउट लोन कॉन्सेप्ट. क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ लोन रामू ने फर्म से लोन लिया है. मतलब फर्म ने रामू को लोन दिया है. रामू को कुछ पैसे का नीड था, तो उसने फर्म को बोला भाई कुछ टाइम के लिए तुम मुझे लोन दे दो. फर्म ने दे दिया. और एक ऐसा टाइम था फर्म को पैसे का नीड था अर्जेंट, तो उसने लोन मांगा, तो मामू ने फर्म को लोन दिया. लोन फ्रॉम पार्टनर. अब बहुत सिंपल बात है, फर्म ने एक पार्टनर से लोन लिया है, एक पार्टनर को लोन दिया है. अब इंटरेस्ट का लेन देन भी उल्टे साइड होगा. कैसे होगा इंटरेस्ट का लेन देन, आप बताइए. यस, so we have one loan given by firm to partner, that is Ramu. One loan taken by firm from partner, that is from Mamu. अब बहुत सिंपल है. अब जहां से इंटरेस्ट आएगा, जहां से लोन आएगा, इंटरेस्ट विल मूव इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. सो यहां पे इंटरेस्ट हम लेंगे. तो firm will get interest from Ramu and firm will pay interest to Mamu. बहुत सिंपल लॉजिक अप्लाई करेंगे. लोन की ऑपोजिट डायरेक्शन में इंटरेस्ट जाएगा. क्लियर? तो फर्म का पार्टनर्स के साथ चौथा और पांचवा लेन देन होता है इंटरेस्ट ऑन लोन. लास्ट जो लेन देन होता है वो है रेंट. कभी कभी फर्म पार्टनर का दुकान यूज करता है, पर्सनल दुकान, और फर्म उसका रेंट देता है. वो कभी कभी आएगा. बट ये 5, 3, 4, 5, 6 पॉइंट्स आपको बार बार दिखेंगी. तो आप अगर इस टेबल को कंप्लीट करना चाहते हैं, इसमें और क्या लेन देन होगा? इंटरेस्ट ऑन लोन. अभी पेड बाय फर्म. फर्म जब लोन लेगा तो इंटरेस्ट देगा. इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय फर्म फ्रॉम पार्टनर. अच्छा, अब बच्चों कौन सा इंटरेस्ट पेड बाय पार्टनर टू फर्म है? टेकन बाय पार्टनर फ्रॉम फर्म. जो लोन लेगा वो इंटरेस्ट देगा. बस ये सिंपल कॉन्सेप्ट याद करो. तो फर्म कभी इंटरेस्ट पे करेगा जब फर्म लोन लेगा. पार्टनर कभी इंटरेस्ट पे करेगा जब पार्टनर फर्म से लोन लेगा. तो 5 और 1 6, टोटल 6 कैलकुलेशंस हो गए. 7वां कैलकुलेशन है, एक और पेमेंट है जो पार्टनर
को फर्म करेगा, एंड दैट इज 0.5 रेंट. In all, 5 payments are made by firm to partner and 2 amounts collected from partner by firm. अब इनकी हम सीखेंगे अकाउंटिंग कैसे करते हैं. ध्यान देना, इनकी अकाउंटिंग करने से पहले we have some very important rules to discuss. Number 1, जो भी आप terms and conditions रखेंगे, all should be specified in partnership deed. What is partnership deed? Partnership deed is nothing but agreement of partnership in writing. Agreement in writing is partnership deed. अगर डीड में आपने लिख दिया तो डीड में जो लिखा वैसे, जैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपने डीड में लिखा 3:2 होगा, तो 3:2 में प्रॉफिट बांटेंगे. 60-40%, 50-50%, 80-20%, जो रेशियो आपने डिसाइड किया एज पर डीड. लेकिन अगर आप डीड में लिखे ही नहीं, वी डोंट राइट एनीथिंग इन डीड, तो क्या करना पड़ेगा, हम सीधा जाएंगे परम पूज्य एक्ट के पास. पार्टनरशिप एक्ट 1932 को पूछेंगे, भाई हम डीड में लिखना भूल गए, आप बताओ प्रॉफिट कैसे बांटें. तो एक्ट बोलता है यू डिस्ट्रीब्यूट इन व्हाट रेशो, इक्वल रेशो. फिर सैलरी टू पार्टनर है, डीड में लिखा उतना देंगे. लेकिन अगर आपने, हमारा यहाँ का डिस्कशन ये होगा, डीड में लिखा तो डीड वाला, डीड में नहीं लिखा तो क्या. मतलब इन ऑल केसेस हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि अगर डीड में हमने स्पेसिफाई नहीं किया टर्म्स एंड कंडीशंस, तो एक्ट में क्या बोल रहा है. सैलरी टू पार्टनर, एक्ट इज ऑल्सो साइलेंट. एक्ट इज नॉट हैविंग any clause with respect to salary, as well as interest on capital, as well as interest on drawings. कंक्लूजन, सैलरी तभी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तभी दे सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स तभी ले सकते हैं जब डीड में लिखा हो, और जो अमाउंट, जो रेट डीड में लिखा हो उसी के हिसाब से लेना या देना पड़ेगा. नंबर 4 और 5, इंटरेस्ट ऑन लोन. ये ध्यान देना, यहां पे ना कंफ्यूजन हो सकता है. जो लोन पार्टनर ने दिया है, गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, उसका इंटरेस्ट रेट पार्टनरशिप एक्ट में लिखा है 6%. मतलब डीड में लिखा तो डीड वाला, डीड में लिखना भूल गए तो एक्ट में 6% पर एनम. लेकिन अगर फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है, डीड में इंटरेस्ट लिखा तो फॉलो करेंगे, डीड में लिखा नहीं लिखा तो एक्ट में जाएंगे. एक्ट इज साइलेंट. इसका मतलब है एक्ट दो ही चीजें बात करता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इक्वल, इंटरेस्ट ऑन लोन, लोन बाय पार्टनर टू फर्म, लोन गिवन बाय पार्टनर टू फर्म, उसका इंटरेस्ट 6% पर एनम. ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपके बड़े बड़े सम्स में, एमसीक्यूज में, हर जगह बार बार आने वाले हैं, बार बार यूज होने वाले हैं. उम्मीद है एवरीथिंग इज ऑल वेल. अब दोस्तों हम सीखेंगे हाउ टू डू अकाउंटिंग ऑफ व्हाट वी डिस्कस नाउ. हाउ टू डू अकाउंटिंग. तो हम क्या करते हैं, एक स्पेशल अकाउंट बनाते. देखो आप फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आप जब सोल प्रोप्राइटर का फाइनल अकाउंट बनाते हैं तो आप क्या क्या बनाते हैं. आप एक बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, एक बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और एक बनाते हैं बैलेंस शीट. लेकिन जब आप पार्टनरशिप के फाइनल अकाउंट्स बनाते हैं, आप पहला सेम बनाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट, फिर बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब कुछ नया बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, चौथा बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये कुछ नया आ गया, और उसके बाद बनाएंगे आपकी बैलेंस शीट.
व्हाट हैपेंस इन सोल प्रोपराइटर? ट्रेडिंग अकाउंट से आप क्या निकालते हैं? जीपी, यू ट्रांसफर इट टू पीएनएल। पीएनएल से आप क्या निकालते हैं? एनपी, यू ट्रांसफर इट टू बैलेंस शीट, कैपिटल में आप जोड़ देते हैं। अब आप पार्टनरशिप का समझो कैसे होता है। पार्टनरशिप ट्रेडिंग से वही आपको क्या मिलेगा? ग्रॉस प्रॉफिट जो पीएनएल में जाएगा। पीएनएल से आपको क्या मिलेगा? नेट प्रॉफिट। अब ये नेट प्रॉफिट पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर होगा। व्हाट इज अप्रोप्रिएशन अकाउंट? अप्रोप्रिएशन नथिंग इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। किसको बांटना है प्रॉफिट? किसको डिस्ट्रीब्यूट करना है? पार्टनर्स को। सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ पीएनएल अप्रोप्रिएशन? जो हम प्रॉफिट पीएनएल से कमाते लाते हैं वो प्रॉफिट पार्टनर्स में कैसे बांटते हैं, ये सब अकाउंटिंग अप्रोप्रिएशन अकाउंट में होता है। So what you do in appropriation, entire appropriation, distribution of profit, आप प्रॉफिट पार्टनर को कैसे बांटते हैं? आप प्रॉफिट 3 अलग अलग फॉर्म्स में बांटते हैं। आप पहला पार्टनर को सैलरी देते हैं, पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देते हैं, फिर पार्टनर को शेयर ऑफ प्रॉफिट देते हैं। ये जो तीनों आप पार्टनर को देते हैं ये है अप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। ये अप्रोप्रिएशन अकाउंट में लिखे जाएंगे। एट द सेम टाइम आप पार्टनर से कुछ लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, ये भी हमारे अप्रोप्रिएशन में जोड़ा जाएगा। सो मेनली अप्रोप्रिएशन अकाउंट में वी रिकॉर्ड एंटायर अकाउंटिंग ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स का लेन देन। याद करना मैं आपको इसका एक स्पेशल स्टेटमेंट बना के दूंगा, क्या क्या अप्रोप्रिएशन में नहीं आएगा जो पार्टनर से कनेक्टेड है, क्या क्या आएगा वो ध्यान से हम बात करेंगे। तो यहां से हम क्या करेंगे, यहां पे हम सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ड्राइंग्स एंड प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन, ये सब काम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में करेंगे और वो पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर करेंगे और पार्टनर्स कैपिटल फिर अल्टीमेटली किधर जाएगा? बैलेंस शीट में। ये कैसे करेंगे ये पूरा हम डिटेल में सीखने वाले हैं, ठीक है। अब ध्यान करेंगे एक बात का, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपके पार्टनर्स और फर्म के बीच में लेन देन में 7 पॉइंट्स हमने डिस्कस की। कुछ 5 ऐसे अमाउंट थे जो फर्म पार्टनर को देगा, 2 अमाउंट थे जो पार्टनर फर्म को देगा। अब वो कहां पर डिस्क्लोज किए जाएंगे? ध्यान देना, आपका सैलरी टू पार्टनर अप्रोप्रिएशन में आएगा बिकॉज दिस इज पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी इन अप्रोप्रिएशन अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी अप्रोप्रिएशन में आएगा। और उसके बाद आपका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो आप लिखेंगे, जो डिवाइड करेंगे, वो भी अप्रोप्रिएशन में आएगा। तो अप्रोप्रिएशन में क्या नहीं आएगा? इंटरेस्ट ऑन लोन, ये पीएनएल में जाएगा बिकॉज लोन है। लोन का जो इंटरेस्ट होता है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का पार्ट नहीं हो सकता है। लोन इज अ लायबिलिटी काइंड ऑफ अ थिंग। सो इंटरेस्ट ऑन लोन जो फर्म पार्टनर को देता है या पार्टनर फर्म को देता है, दोनों इंटरेस्ट पीएनएल में जाएंगे। इंटरेस्ट ऑन लोन बाय फर्म टू पार्टनर और बाय पार्टनर टू फर्म, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन विल कम टू पीएनएल। और दूसरा आएगा रेंट दैट फर्म पेज टू पार्टनर। अब ध्यान देना, ये एक और चीज आपको ध्यान में, ये जो मैं समझा रहा हूं ये एक क्रक्स है। इनको अगर आपने पकड़ लिया तो आपकी अकाउंटिंग आपके लिए बहुत आसान हो जाएगी। अब ध्यान देना, पहले तो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते कैसे हैं और कैसे चीजों को प्रेजेंट करते हैं। तो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट, ये कुछ चीजें हैं, ये मैं जस्ट आपको अभी बता रहा हूं, बाद में आई विल कम बैक एंड डिस्कस दीज अगेन, ठीक है।
Let's speak about P&L appropriation account. So friends, now we need to understand how to make P&L appropriation account, how to make partners capital account. ये जो हमारा पहला सेशन है, इसमें जस्ट एक ओवरव्यू दिया मैंने, ओवरऑल आइडिया अबाउट बेसिक्स ऑफ योर पार्टनरशिप. तो अगला जो सेशन रहेगा, वी विल डिस्कस अबाउट P&L अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल, उनकी अकाउंटिंग, उनके कंटेंट को इन डेप्थ डिस्कस करेंगे. और वी विल हैव अ प्लेलिस्ट इन आवर यूट्यूब चैनल. तो आप, if you really want to learn everything systematically, in depth, minutely, conceptually, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें. कीप कनेक्टेड. टाटा, बाय बाय, थैंक यू.